तो आप सभी का स्वागत है वीकेंड के बाद इस बिजनेस एंड अकाउंटिंग के सेशन में। और जैसा कि आज के क्लास में जीएसटी पे डिस्कस करने वाले हैं, और आज की क्लास एडवोकेट संजू सैनी जी लेंगी, जो कि टैक्सेशन की लॉयर हैं और काफी नॉलेज रखती हैं जीएसटी के बारे में। तो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा तनिष फातिमा जी को फॉर द ब्रीफ इंग्लिश पर्सन एंड आवर रीडिंग पर्सन एज वेल। व्हाट यू। Thank you so much. नहीं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। I think there are some issues, so I'm going to introduce today's person, Miss Sanju Sani. Sorry, Advocate Sanju Sani. So, Advocate Sanju Singh is an advocate specializing in income tax matters and practice primarily before the Income Tax Appellate Tribunal. She completed her graduation with a Bachelor of Commerce from Guru Gobind Singh College of Commerce. Following her undergraduate studies, she pursued her law degree from Mewar Institute, Ghaziabad. During her LLB course, she gained practical experience as a part-time intern as VKHS as Associates, led by CA Vinod Kalra, which further enhanced her legal acumen. After completing her LLB, Sanju worked at Tizari Court, gaining valuable exposure to courtroom proceedings. Under the guidance of esteemed Jyotika Kalra ma'am, she led her to join Baldev Raj and Company, where she has been a practicing advocate for the past 4 years. Throughout his journey, she has been mentored and guided by Jyotika Kalra, the president of Satyamara Society, and she has continuously supported and motivated her in both her personal and professional life. Sanjay Sen is now an executive member of System Yoga Society. So now I'm going to introduce today's resource person, Mr. PK Malhotra sir. So PK Malhotra sir, BTech from IIT Delhi and MBA, has worked as a scientist at DRDO inside development for 6 years. He has over 32 experience in Government of India PSU sector, handling projects, operation, production, and engineering services across mechanical, electrical, electronics, civil, air conditioning, and environmental engineering, along with administration, vigilance, labor management, and IT. For the last 13 years, he has been associated with Saksham Bharti as project convener and secretary, and currently teaches personality development, career counseling, yoga, and pranayama, besides managing scholarship at the Raghuvendranagar Nagar Center. So this is the whole introduction of today's resource person and our leading person, Mr. P. Gopal sir. So I'm requesting our resource person, Ms. Advocate Sanjeev Saini, to start the session. What is it? Thank you, Abhishek, for warm welcome and warm introduction. Thank you, Saksham Rozgar Society and ज्योतिका मैम जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज ये क्लास ले पा रही हूँ। तो आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज की जो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइव स्टोरी शेयर करूंगी ताकि आप इस क्लास को रिलेट कर पाएं और जीएसटी को अच्छे से समझ पाएं। तो मेरी खुद की लाइफ स्टोरी ये है कि अभी रिसेंट लास्ट मंथ में मेरी मम्मी का फोन हो गया था खराब। अब उनको चाहिए था नया फोन। तो वो बोली कि मुझे नया फोन चाहिए और वो खुद जाके एक शॉप पे गई और एक फोन पसंद करा जो कि था 12,000 रुपए का। अब उनको वो बोली मैंने फोन तो पसंद कर लिया है, मुझे 12,000 रुपए चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी भी सैलरी आई थी तो मैंने कहा ठीक है ले लो आप। मैंने 12,000 रुपए दे दिए। अब वो थोड़ी चालाक भी हैं, तो उन्होंने क्या करा, वो गई शॉप पे गई और उनको बोला कि मुझे 2,000 रुपए का, उन्होंने लड़ झड़ के डिस्काउंट करा लिया। तो उनको फोन हो गया जो 12,000 का था 10,000 रुपए का। अब वो बड़ी खुश हैं कि ठीक है 2,000 तो मेरे बच जाएंगे और मैं एक सूट भी लेके आऊंगी। तो अब हुआ क्या, जब मैंने ये भी बोला था कि बिल भी लेके आना अपने साथ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और वो गई वहां पे और जब पेमेंट की बारी आई तो जो शॉपकीपर था उन्होंने उससे उन्होंने से 12,000 का फोन था, 12,000 बिल में लिखा, 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया और 10,000 रुपए का ये इनको फोन पड़ा। प्लस में उन्होंने जीएसटी लगा दिया और जो कि 1,800 रुपए, मतलब 18% का जीएसटी लगाया। तो जो इनको फोन पड़ा वो 11,800 का। तो जब पेमेंट की बारी उन्होंने मांगा 11,800 रुपए। अब वो कंफ्यूज हो गई कि मेरे को तो 2,000 बचाने थे, 200 रुपए मिले हैं, और जो कि उनके कन्विंस में लग गए और वो घर आ गई।
और उनके 11,800 का फोन ले लिया। अब जब मैं ऑफिस से आई तो मैंने देखा वो इतनी खुश नहीं थी जितना उनको होना चाहिए फोन को लेकर। मैंने कहा क्या हुआ, आप खुश नहीं हो, आपने फोन भी तो लिया है? तो कह रहे नहीं मैं खुश नहीं हूँ, उसने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए, उसने टैक्स के नाम पे जीएसटी बोलकर ज्यादा पैसे ले लिए। उनको ज्यादा जीएसटी के बारे में पता नहीं था। फिर मैंने उनको समझाया ये टैक्स है। तो आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी है, तो आप इसको समझ पाएंगे कि जीएसटी क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके टाइप क्या है, इसके कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि आपने पिछले क्लासों में भी देखा होगा कि जीएसटी का टॉपिक बार बार आ रहा था। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी जैसे हमने बताया, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी को पहले मतलब समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। तो ये जो हमारा टैक्स है यहाँ पे है, इसकी डेफिनेशन दी हमने कि टैक्स इज मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। मतलब ये टैक्स क्या है, एक ऐसा पैसा है जो पीपल क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, हैव टू पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस स्लाइड में तो एक हमने डायग्राम भी डाला है जिसमें क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, कलेक्ट करती है टैक्स। कहाँ से? फर्म से, कंपनी से, या इंडिविजुअल से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। वो हम आगे कवर करेंगे इसको, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। टू प्रोवाइड, क्या करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ केयर। तो यहाँ पे नीचे हमने लिखा भी है कि द गवर्नमेंट यूज दिस मनी फॉर पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन। एजुकेशन में कैसे कैसे यूज होता है पैसा, जैसे स्कूल की अगर बिल्डिंग बनानी हो, या फिर टीचर की सैलरी देनी हो, या मिड डे मील अगर देखोगे आप गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील भी मिलता है, फ्री बुक्स भी मिलते हैं। तो ये सारा पैसा टैक्स का पैसा ही होता है जो गवर्नमेंट पीपल से कलेक्ट करके और पब्लिक के बेनिफिट्स या पब्लिक की सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। दूसरा जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में आप देखोगे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चल रहा होगा या लो कॉस्ट ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है जिसमें कम पैसे में इलाज हो जाता है। या एम्बुलेंस सर्विसेज अगर आप देखें तो इससे भी ये जो यहाँ पे जो पैसा खर्च हो रहा है इस फैसिलिटी को देने के लिए, वो टैक्स का पैसा होता है। टैक्स के पैसे से ही ये सारी चीजें होती हैं। अब डिफेंस का मैं एग्जांपल दूं, जैसे वेपन, या जैसे अभी लड़ाई हो रही है तो टैंक्स वगैरह, या सोल्जर्स को सैलरी देनी हो, या फिर आप ये बॉर्डर सिक्योरिटी के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्च होता है ये सारा टैक्स के पैसे से होता है। रोड और एंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे हाईवे हो गए, या फ्लाईओवर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, मेट्रो हो गई, या पब्लिक के लिए फैसिलिटी की जो बसें चलाई जा रही हैं जैसे जिसमें लेडीज के लिए फ्री भी चल रही हैं। तो ये टैक्स के पैसे से ही इसका खर्चा होता है। उसके बाद ये पुलिस एंड लीगल सिस्टम, पुलिस की सैलरी या जजेस की सैलरी, ये सब टैक्स के पैसे से होता है। तो टैक्स इज इक्वल टू मनी गिवन टू द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। अब हमने ये पढ़ लिया कि टैक्स क्या है। अब इसके टाइप्स भी हैं। टाइप्स इसे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जैसे कि जो डायरेक्टली पीपल के द्वारा पे किया जाता है गवर्नमेंट को। मतलब जैसे मैंने सैलरी अर्न करी तो मैंने ही इसमें जो भी मेरा टैक्स बना वो मैं ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करूंगी या जमा करूंगी। इसमें हमने एग्जांपल भी लिया इनकम टैक्स। मतलब इसका जो बर्डन है मैं शिफ्ट नहीं कर सकती, मेरा टैक्स है मुझे ही पेमेंट करनी है। दूसरा टाइप होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इसका जो टैक्स है वो मैं पे कर रही हूँ, लेकिन मेरे मेरे डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे कर मैंने पे करा है, जिससे मैंने मैंने गुड्स को परचेज किया है। जैसे मैंने सेलर, कोई भी शॉपकीपर है, मैंने जो भी प्रोडक्ट खरीदा वो उससे खरीदा तो मैंने टैक्स किसको डिपॉजिट करा, सेलर को। और सेलर टैक्स डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर क्या, मैं डायरेक्टली नहीं दे रही टैक्स को, लेकिन इनडायरेक्टली दे रही हूँ। टैक्स तो दे रही हूँ लेकिन इनडायरेक्टली, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, जो कि हम आज का पूरा टॉपिक हमारा जीएसटी के ऊपर ही है। अब आता है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके ओके ओके।
वही तो आगे अब हम देता। बात करते हाँ हैं आगे दिखता मांग लो भाई, बाहर तो वो बनवा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पे हमने टैक्स कब लगेगा, मतलब जीएसटी टैक्स कब लगेगा, अगर हम सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे जो गुड्स है एंड सर्विसेज है, ये दोनों अलग अलग है। गुड्स मतलब वो टेंजिबल आइटम या फिजिकल आइटम आप बोल सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, या जिसे आप स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप आज क्लास ले रहे हो, मोबाइल फोन से कनेक्ट किया आपने, तो मोबाइल फोन क्या है आपके लिए, गुड्स है। आपका जो लैपटॉप है वो गुड्स है, आपका पेन ये गुड्स है। एंड सर्व और सर्विसेज, मतलब सर्विसेज जब ये क्या है, इंटेंजिबल आइटम है, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे आज क्लास मैं ले रही हूँ आपकी, तो मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग क्या है, सर्विसेज है। तो ये दोनों ही केस में लगेगा, या आपका सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, या दोनों भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर एल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ह्यूमन कंजम्पशन हो रही है उसकी, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब इस केस में ऐसा नहीं है कि इसमें जीएसटी नहीं लग रहा तो कोई टैक्स ही नहीं लग रहा, इसमें अदर टैक्स लगते हैं, जो जैसे वैट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, उस पर दूसरे जो स्टेट के टैक्स होते हैं वो एप्लीकेबल है। अगर अब यहाँ पे मैंने फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लिया, ह्यूमन कंजम्पशन अगर ड्रिंकिंग के पर्पज से हो रहा है ये यूज, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अदरवाइज अदर इंडस्ट्रीज में तो यूज होता है ना अल्कोहल, लाइक मेडिसिन के डिपार्टमेंट में, मेडिसिन कोई बन रही है तो उसमें अल्कोहल का यूज होता है, या सैनिटाइजर हो गया आपका, या फिर परफ्यूम्स हो गए आपके, तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ड्रिंकिंग के पर्पज से परचेज हो रही है या सेल हो रही है तो इस पे जीएसटी नहीं है, इस पे अदर स्टेट लॉ स्टेट टैक्स लगते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा भी है जीएसटी इज इक्वल टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमने बात करी कि ये क्या है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अप्लाइड कब होता है, जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज बाय और सेल करते हैं, और ये गुड्स जो भी हम इस पे जीएसटी जो भी लगेगा वो प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे केस में, मैंने जो मेरे मम्मी ने जो फोन लिया था, तो उनको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ी थी, 11,800 रुपए की, क्योंकि उसमें जीएसटी ऐड हो गया। 10,000 का फोन और 18% जीएसटी जो कि 1,800 था, तो उनको टोटल प्रोडक्ट क्या कितने का हो गया था, 11,800 का। तो ये इंक्लूड हो जाता है प्रोडक्ट के प्राइस में। इसमें क्या होता है, सेलर कलेक्ट करता है जीएसटी एंड डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। अब मेरे केस में मैंने सेलर को दिया ना जीएसटी का जो अमाउंट था, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो दिया नहीं, उसने मैंने उसको दिया, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो आपको ये जीएसटी समझ में आया, जीएसटी क्या है? यस मैम। यस मैम। ओ, अब हमें पता चल गया कि जीएसटी क्या है। तो अब जैसे मैंने बताया कि पहले भी जीएसटी अगर नहीं था तभी भी टैक्सेस लगते थे, तो हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई डू वी नीड जीएसटी? तो इसमें है फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि मैंने आपको ना प्रीवियस में बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट है, एक्सरसाइज है, सर्विस के लिए अगर आप सर्विस कर रहे हो तो डिफरेंट टैक्स लग रहा है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो डिफरेंट टैक्स लग रहा है, तो अलग अलग टैक्स लगते थे। अगर इवन इस स्टेट में दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, तो स्टेट वाइज भी टैक्स अलग अलग हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन, वन टैक्स वन सिस्टम। इसने क्या रहा, इसने बहुत सारे टैक्स को रिप्लेस कर दिया और एक सिंपल टैक्स आया जो कि है जीएसटी। दूसरा हमारा एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग टैक्सेशन, इसको हम बोलते हैं नो टैक्स ऑन टैक्स। मतलब पहले क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन हो रहा है तो टैक्स लगेगा, फिर आप वो आपके जो प्रोडक्ट होगा और जिस पे टैक्स लगा है वो टोटल वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट का, फिर आप उसको सेल करोगे तो उसमें फिर टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। पहले टैक्स के ऊपर टैक्स फिर लग रहा था, तो डबल टैक्सेशन हो रहा था। लेकिन जीएसटी के आने से जो इसका अवॉइड हो गया डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन अब नहीं लगता। प्रमोशन ऑफ वन नेशन वन टैक्स, मतलब सेम टैक्स एवरीवेयर। पहले जैसे दिल्ली में अगर आप माल बेच रहे खरीद रहे हो तो वैट लगता था, मतलब डी वैट, दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स। वही हरियाणा में करोगे तो एच वैट। तो मतलब स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स लगा करते थे, उनके रेट्स भी अलग अलग होया करते थे।
लेकिन जीएसटी के आने से आप अब कहीं पे भी आप सेल करो, परचेज करो, ओवरऑल ओवरऑल इंडिया, आपका जो जीएसटी का रेट होगा वो सेम होगा, सेम जीएसटी होगा, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगा पूरे ही इंडिया में। इससे क्या हुआ, इनहैंस ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंसेस। वन सिस्टम हो गया तो रिड्यूस हो गया आपका करप्शन। अब एक ही, अब सारी रिपोर्टिंग हो रही है ऑनलाइन, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई। आपने सेल करा तो आपकी डिटेल जाएगी, परचेज करा तो डिटेल रिफ्लेक्ट होएगी, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी कैसे। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी हो गई। बूस्ट टू इकोनॉमी, ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग रजिस्टर होंगे, ट्रांसपेरेंसी होएगी, तो टैक्स इवेजन भी कम हो रहा है, तो इससे इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, इससे क्या होगा, टैक्सेशन सिंपल हो गया, रिड्यूस हो गए कॉस्ट, तो बिजनेस को की भी ग्रोथ हुई। तो जीएसटी के लाने के फायदे इतने सारे थे। ये मैंने जीएसटी का जो पोर्टल है जिसपे हम रजिस्ट्रेशन लॉग इन करके आप इस पे रिटर्न भरना, ये सारी चीजें करते हैं, तो इसमें से मैंने आइकन लगाया टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी का पोर्टल होता कैसे है। जहाँ पे अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं जो भी इसकी रिक्वायरमेंट डिटेल्स होती हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर, तो यहाँ पे लॉग इन करके जो भी आपको अपनी रिटर्न भरनी है या फिर आपके कोई भी चीजें देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने अब पढ़ लिया कि इसकी जरूरत क्या थी, अब हमने बताया बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी। अब जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि जीएसटी आ गया, सबके लिए एप्लीकेबल है, पर यहाँ पे भी एक थ्रेश होल्ड लिमिट है, मतलब हायर थ्रेश होल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन है तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी सबको लेना मैंडेटरी है, इसके लिए भी एक सर्टेन लिमिट है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, और एक सर्टेन लिमिट होती है, सबके लिए जरूरी नहीं है जीएसटी। कुछ कुछ केस है जिसके लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज इसकी एक लिमिट डिसाइडेड है। इससे क्या हुआ, रिड्यूस टैक्स इवेजन, मतलब जीएसटी के आने से क्या हुआ, जीएसटी जो टैक्स का इवेजन है, मतलब टैक्स की जो चोरी है वो कम हो गई। कम कैसे, जैसे क्योंकि आपको मैंने बताया कि जीएसटी फुली ऑनलाइन है, इसकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, तो इसकी इसमें इनकम कोई छुपा नहीं सकता, तो टैक्स की चोरी भी कम हुई है। इसमें नेक्स्ट है लेस कंप्लाइंसेस। जीएसटी में नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि अगर हम देखें पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें मल्टीपल टैक्सेस थे, तो मल्टीपल रिटर्न्स भी जाती थी, तो लेकिन इससे जीएसटी के आने से नंबर ऑफ फॉर्म्स कम हो गए और इसकी कंप्लाइंसेस भी कम हो गए। नेक्स्ट है नो मल्टीपल टैक्सेस। अब जैसे हमने बात करी थी कि टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था पहले, तो यहाँ पर मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगते, एक ही टैक्स लगता है जो कि जीएसटी है। पहले जैसे सर्विसेज में अलग लगते थे, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो अलग टैक्स लग रहा है, तो इसमें क्या सिंपल हो गया है, मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगते। इसमें हो रहा है नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू। गवर्नमेंट का रिवेन्यू, क्योंकि आपने इसमें क्या है, बहुत सारे बिजनेस ने रजिस्टर्ड करा जीएसटी में, इससे क्या हुआ, मोर बिजनेस अगर होगा तो ऑब्वियसली मोर टैक्स होगा, मोर टैक्स होगा तो जो गवर्नमेंट का फंड भी ज्यादा होगा, तो इससे गवर्नमेंट की रिवेन्यू भी ज्यादा होगी। अब हमने ये भी बात कर लिया कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। अब जीएसटी में रेट्स भी होते हैं। आप देखेंगे, मैंने अभी मेरे केस में जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, 18% का जीएसटी लगा था, तो ऐसे ही मल्टीपल टैक्सेस के जीएसटी के मतलब रेट्स हैं जीएसटी के अलग अलग, जो कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि 0% फॉर एसेंशियल आइटम्स, जैसे आपका फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गए, वीट हो गया, इस पे क्या 0% टैक्स लगता है, जो कि एसेंशियल है, जो कि जरूरी है, जो गुड्स आपके लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए, उस पे 0% लगाया है टैक्स, ताकि सारे ही अफोर्ड कर पाए इसको। जो सेकंड रेट है वो हमारा है 5% फॉर डेली यूज, मतलब ये भी एसेंशियल है बट डेली यूज के लिए, जैसे कि टी कॉफी, मतलब ये सर्वाइवल, ये नहीं कि इसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इस पे 5% का जीएसटी रेट रखा है। 12% फॉर स्टैंडर्ड गुड्स के लिए रखा है, जो कि कॉमन गुड्स होते हैं, जैसे बटर, चीज, बाइसिकल। और 18% मोस्ट ऑफ गुड आपको मिल जाएंगे, गुड्स जैसे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं या सर्विसेज हैं, जैसे कि आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो इसमें भी आपको 18% का जीएसटी लगता है, सर्विसेज हो गई आपकी। और जो 28% है फॉर लग्जरी एंड सिन गुड्स। लग्जरी मतलब कि जो
जो महंगी चीजें हैं। और सिन गुड्स मतलब कि जो कि हार्मफुल है। हार्मफुल जैसे कि वो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल है, इंडिविजुअल के लिए भी हार्मफुल है। जैसे कि अब लग्जरी में जैसे कार हो गया, सीमेंट हो गया, ये लग्जरी गुड्स हो गए। और जो सिन गुड है वो तंबाकू हो गया, या पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गई, ये सब क्या है, आपका सिन गुड हो गया। हेलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने जीएसटी। हेलो, हाँ जी। मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हेलो जी, बताइए। मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने जीएसटी बताया। जीएसटी जो होता है, जैसे हम्म। हमारा इंडायरेक्ट टैक्स बेसिकली मानेंगे हम, इंडायरेक्ट टैक्स होता है हमारा, हाँ जी। है ना मैम? वो हमारा इंडायरेक्ट टैक्स होता है जो हमसे इनडायरेक्टली वसूल लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चिप्स के पैकेट या किसी भी चीज पे जो टैक्स होता है इनडायरेक्टली होता है। तो मैं ये जानना चाहता राइट। था, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें मतलब उसके हम्म। एग्जांपल्स को जानना चाह रहा था मैं, कि डायरेक्ट टैक्स के क्या एग्जांपल्स एग्जाम्पल, होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स। अच्छा। आपने डायरेक्ट आपने इनकम अर्न करी, उस पे जो टैक्स दिया वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक बाकी है। अगर किसी को तो क्वेश्चन मैम, होंगे तो आप जीएसटी जो राइट होता डाउन है, कर लेना। जी हाँ, आप जी राइट मैम, जो डाउन कर जीएसटी लीजिए होता है अपने वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली को। होता है। ओके मैम, ओके। हाँ, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यस मैम, क्योंकि यही ये पूछना आप था। डायरेक्टली पे नहीं कर रहे किसी को, ये इनडायरेक्टली आप पे तो कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है पे। सीधा आप जाके गवर्नमेंट यस को तो नहीं मैम। कहते ना कि ये लो टैक्स ले लो मेरा। ये आपने नहीं, वो आपके हमारे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट पे ही ऐड होके आया ऐड है। होता है। हाँ, यस राइट, मैम। आपके प्रोडक्ट में ही ऐड हो जाता है। और वो आप पे कर रहे हो उसको, और वो शॉपकीपर जो भी होगा, जो जिससे भी आपने माल आपका गुड्स खरीदा होगा, वो उनको डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। ओके। क्लियर है? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है ओके। आपके लिए मैम। हाँ जी, बताइए। मैम जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उस पर कितने परसेंट जीएसटी लगेगा? हाँ जी। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होते हैं उस पर कितने कितने परसेंट जो ज्वेलरी उस पर लगेगा जीएसटी, कितने परसेंट लगेगा उस पर? जो ज्वेलरी होगा वो मोस्टली 18% में आएगा। आर्टिफिशियल हो या ओरिजिनल हो, दोनों? नहीं, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो उसका एक डिफरेंट रेट है जो कि 3% है। मेकिंग चार्ज और अलग से? हाँ जी। ठीक। ठीक। अब हम बात करते हैं न्यू जीएसटी रेट। आपने सुना होगा सितंबर में कुछ जीएसटी के रेट्स चेंज हो गए। तो ये एक टेबल है जिसमें आपको जीएसटी रेट जो कि अभी इसमें 0%, 5%, 18% एंड 40% है। जिसमें 0% आपके एसेंशियल गुड्स जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जैसे फ्रेश फूड या मिल्क, बेसिक मेडिसिन, एजुकेशन। इसमें एजुकेशन सर्विस भी इंक्लूड करी है 0% में। जो नया जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है जीएसटी रेट का, इसमें 5% है जो डेली यूज वाले और एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे कि पैकेट फूड्स हो गए, गारमेंट्स हो गई, या रेस्टोरेंट में आपने कोई सर्विसेज ली है, ये आपके 5% में आ जाते हैं। 18% जो स्टैंडर्ड रेट है फॉर ऑलमोस्ट जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसके लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या अप्लायंसेज हैं, या सर्विसेज है, या स्मॉल कार आपने लिया, तो उसमें 18% का जीएसटी रेट लगेगा। अब पहले लगता था 28%, अब लेकिन इसको कर दिया 40%। मतलब अगर आप लग्जरी और सिन गुड्स ले रहे हैं तो अब इस पे 40% का जीएसटी रेट लगेगा। जैसे सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, या लग्जरी कार ले रहे हैं तो उसमें 40% तक जीएसटी लगेगा। अब हमने जीएसटी का एक आपने सुना होगा जीएसटी नंबर, जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 15 डिजिट का होगा। आई थिंक आपने अगर आप कहीं अगर आपके बिल पास बिल हो तो आप देखेंगे बिल पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, या बहुत सारे साइन बोर्ड्स अगर आप जाते हैं मार्केट में तो वहां पे जीएसटी नंबर भी लिखा होता है उनका, जो कि 15 डिजिट का होता है। तो अब हम इसको समझेंगे, जीएसटी नंबर में जो डिजिट्स हैं, ये जो अल्फाबेट डिजिट, ये 15 डिजिट का जो जीएसटी नंबर है, ये क्या डिनोट करता है, क्या बताता है, इससे क्या पता चलता है, हम क्या इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इससे समझ में आएगा आपको। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ये 22 लिखा है यहाँ पर, ये है स्टेट कोड। मतलब आगे की जो 2 डिजिट होती है, फर्स्ट 2 डिजिट, वो स्टेट कोड को बताती है। जैसे अगर 07 अगर हम देखें तो ये दिल्ली का जीएसटी नंबर, जीएसटी कोड मतलब स्टेट कोड है। तो आपके अगर जैसे जो भी दिल्ली वाले होंगे वो देखेंगे कि ज्यादातर बोर्डों पे, मतलब सारे बोर्डों में यहाँ पे 07 से स्टार्ट होता है जीएसटी नंबर।
अब ये जो 10 अल्फाबेट्स और नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है पेन नंबर। पेन नंबर सबके पास होता है, क्योंकि पेन नंबर से जीएसटी नंबर आपको मिलता है। तो इसमें जो पेन नंबर होता है, उसकी जो फर्स्ट जो आपके जो अल्फाबेट्स हैं, ये आपको बताते हैं। जो ये जो 4 अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, जो 3 अल्फाबेट है, वो रैंडम अल्फाबेट्स हैं। और जो ये आपका जो 4th अल्फाबेट है, मतलब जो ए है, वो टाइप ऑफ पर्सन के बारे में बताता है। टाइप ऑफ पर्सन, जैसे कि टाइप ऑफ में जैसे पी जो है, वो पर्सन के बारे में बताएगा, मतलब इंडिविजुअल। मतलब सारे यहाँ पे अगर जो क्लास ले रहे हैं, अगर अपना पेन नंबर देखें, तो उनका जो 4th लेटर होगा, वो पी लिखा होगा, क्योंकि वो क्या है, इंडिविजुअल है, पर्सन है। और अगर इसकी जगह सी होता तो कंपनी, और अगर एफ है तो फर्म, और एच है तो एच यू एफ। तो ये जो जो 4 डिजिट है, वो टाइप ऑफ पर्सन के बारे में बताता है। ऐसे जो 5th जो आपका डिजिट है, वो बताता है आपका सरनेम का फर्स्ट लेटर। जैसे अगर मैं अपना पेन नंबर बताऊं, जैसे इस केस में अगर आप देखें, ये मन्नत फर्नीचर, क्योंकि आपने पूरी क्लास में मन्नत फर्नीचर की अकाउंटिंग करी है, तो आपने अपने जीएसटी नंबर भी लिखा है। यहाँ पे इनके जो प्रोपराइटर का नाम है, वो है विजय बहादुर। तो यहाँ पर आप पी के बाद देखेंगे तो बी लिखा हुआ है, मतलब इनका बहादुर, मतलब सरनेम बहादुर है, मतलब बी, तो बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर आप चेक करेंगे, तो आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद की जो जीरो वाली डिजिट आपको दिख रही है, 4 डिजिट, ये यूनिक नंबर्स होते हैं। और जो आपका उसके बाद आता है, जो ए होता है, वो आपका जर्नल होता है। और उसके बाद जो 1 है, 1Z5 लिखा है, तो 1 जो है, वो एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डिंग इन अ स्टेट बताता है। मतलब एक स्टेट में उस पेन होल्डिंग से कितने जीएसटी नंबर लिए हैं, वो एंटिटी बताएगा। जेड जो होता है, अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट है। और 5 जो है, चेक सम डिजिट होता है, जो कि एल्गोरिथम होते हैं उसके, जीएसटी के खुद डिपार्टमेंट के। तो इस फॉर्मेट से आपको पता चलेगा कि ये जो जीएसटी नंबर का पैटर्न क्या होता है, कि इसका मतलब स्टेट कोड है, प्लस में आपका पेन नंबर है, और इसके फिर जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट देता है। अब बात करते हैं हम बेसिक रूल फॉर रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ लिया जीएसटी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अब हमें पता करना है कि उसके बेसिक रूल क्या है रजिस्ट्रेशन के। जैसे हमने बोला था ना कि थ्रेशोल्ड लिमिट होती है इसकी भी, कि ऐसा नहीं है सबको लेना है जरूरी है, पर इसके लिए एक लिमिट है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है, किसको लेना है और किसको नहीं लेना होता। तो पहला जो केस होता है हमारा, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ गुड्स, मतलब अगर आप गुड्स बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो आपका अगर जो लिमिट है, मतलब आपका जो, अगर आप बेच रहे हो, आपका जो लिमिट है 40 लाख से ऊपर होता है, तो आपको इस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। दूसरा, इसमें इसी में एक केस होता है स्पेशल कैटेगरी स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट होते हैं, वहां पे जो जीएसटी जो टर्नओवर रखी गई है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो कम रखी गई है, जो कि है 20 लाख। यहाँ पे इसका जो रेट कम रखने का जो रीजन है, वो ये है कि यहाँ पे जो ग्रोथ की जो रेट है, वो कम है, और पॉपुलेशन और बिजनेस एक्टिविटी कम होती है। तो सरकार चाहती है कि छोटे छोटे बिजनेस भी जीएसटी सिस्टम में आए और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। जिससे क्या होगा, सरकार को रिवेन्यू अच्छा मिलेगा और उससे डेवलपमेंट होगा। दूसरा जो केस होता है हमारा, होता है एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, जिसमें अगर सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर कोई सर्विसेज है, तो यहाँ पर जो लिमिट रखी गई है, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, वो 20 लाख रखी गई है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप 20 लाख से अगर आपकी टर्नओवर ऊपर जाएगी, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। और ऐसे ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। तो पहले हमें पता चले कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपका जैसे टैक्सेबल सप्लाई हो गया, या एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट सप्लाई, सारी सेल इंक्लूड करोगे तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगी।
तो अगर इससे 40 से ऊपर इन केस ऑफ गुड्स और 20 के ऊपर जाएगा इन केस ऑफ सर्विसेज, तो आपको जीएसटी लेना जरूरी हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि लिमिट के हिसाब से। कुछ मैंडेटरी केसेस भी हैं जिसमें आपको जीएसटी लेना जरूरी ही है, चाहे टर्नओवर एक्सीड कर रही है चाहे नहीं कर रही। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप गुड्स बेच रहे हो, बस ये इन केस ऑफ गुड्स है, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा, अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे कोई अपना गुड सेल कर रहे हो, तो इस केस में भी आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पर आपकी लिमिट को नहीं देखेंगे। हमने अब मैंडेटरी रूल्स पढ़ लिए, तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी के रिटर्न्स क्या क्या होती है, किस टाइप की रिटर्न्स जाती है इसमें। तो मेजर जो 4 रिटर्न है जो इसमें जाती है, पहला जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में क्या होता है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और सेल्स मेड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। इसमें जितनी भी पीरियड की जो भी सेल्स होती है, मतलब जो जीएसटी 1 में पूरी जितनी भी डिटेल जाती है वो सेल्स की जाती है। जैसे मैंने सेल करी, तो जीएसटीआर 1 में मेरी सारी सेल्स की डिटेल्स जाएगी। और अगर मैं जीएसटीआर 2 की बात करूं, तो जीएसटी 2 कंटेन्स डिटेल ऑफ ऑल द परचेज ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ रजिस्टर्ड डीलर फॉर अ मंथ। अगर मैंने किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल को परचेज किया है, तो उसमें ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल होगी। मतलब जीएसटीआर 2 मुझे रिटर्न नहीं फिल करनी होती है, ये ऑटो पॉपुलेटेड होती है। मतलब मैंने अगर माल कोई सेल किया है, तो मेरे लिए क्या है, जीएसटीआर 1 में फिल करूंगी। तो वो माल किसी ने और ने परचेज किया होगा, तो उसके लिए वो परचेज है, तो जो मैंने रिटर्न में 1 में जो डाली है डिटेल, वो उसके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ऑटो पॉपुलेटेड दिखेगी उसको। उसके लिए कोई रिटर्न नहीं फाइल करनी। वाइस वर्सा, अगर मैंने कोई माल परचेज करा है, तो वो किसी ने सेल करा होगा, तो वो उसने रिटर्न फाइल करी जीएसटीआर 1, जो कि मेरी जीएसटीआर 2 के रूप में मेरे को रिफ्लेक्ट करेगी मेरे पोर्टल पे। अब जो आता है जीएसटीआर 3 मतलब जीएसटीआर 1 में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, जीएसटीआर 2 में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन जो जीएसटीआर 3 है, वो क्या है, अ मंथली समरी रिटर्न दैट समराइज द टैक्स पेयर टैक्स लायबिलिटी फॉर अ मंथ। इसमें क्या होता है, समरी होती है, मतलब इसमें आपकी सेल की डिटेल, परचेज की डिटेल जो भी होगी, उसकी एडजस्ट करके जो टैक्स बनेगा, जो भी बनेगा, या तो टैक्स बनेगा या टैक्स नहीं बनेगा, जो भी डिटेल होगी यहाँ पर होती है। 3B में इसकी रिपोर्टिंग होती है और इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स पे होता है। उसके बाद आता है जीएसटीआर 9, मतलब एनुअल रिटर्न प्रोवाइडिंग अ समरी ऑफ द टैक्स पेयर्स जीएसटी एक्टिविटीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग होती है। इसमें पूरे आपने एनुअली जो भी सेल करी, परचेज करी, सारी रिपोर्टिंग हो रही होगी। मतलब अगर मैं ये बोलूँ जीएसटीआर 1, 2, 3 भी अगर ये मंथली डिटेल्स है, मतलब मान लो आपकी यूनिट टेस्ट, मान लो अगर आपकी यूनिट टेस्ट है, तो एनुअल रिपोर्ट क्या पर रिजल्ट है, तो ये पूरा रिजल्ट आपको शो करेगा कि आपके पूरी फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी टैक्स लायबिलिटी थी, ये सारे रिफ्लेक्ट करेगी। अब हमने रिटर्न्स भी बात कर ली, तो हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी के टाइप्स क्या क्या हैं, राइट। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करें, तो यहाँ पे 2 तरीके के टाइप हैं इसके। एक तो है इंट्रा स्टेट जीएसटी, मतलब विद इन स्टेट। मतलब इसमें आपने क्या है कि दिल्ली में हो, दिल्ली में ही माल बेच दिया, तो आप पे क्या लगेगा, ये एप्लीकेबल होगा इंट्रा स्टेट जीएसटी, एक स्टेट से एक ही, मतलब विद इन स्टेट। दूसरा हमारा इंटर स्टेट जीएसटी, मतलब आउटसाइड द स्टेट, या आप बोल सकते हो बिटवीन 2 स्टेट्स। जैसे मैंने एक दिल्ली का स्टेट से माल दूसरे स्टेट। हर, यस मैम। कुछ को डाउट है? यस मैम, आपने मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो इंटर स्टेट में होगा ना मैम? वो इंटर स्टेट में होगा, आईजीएस। और पहले हमने यस इंट्रा मैम। स्टेट बात करी थी। इंट्रा यस मैम। मीन्स विद इन स्टेट, और इंटर यस मैम। मतलब बिटवीन 2 स्टेट्स। 2 स्टेट। हाँ, बिटवीन 2 स्टेट्स, लाइक आपने दिल्ली से माल बेचा हरियाणा में, तो ये क्या यस हो गया, मैम। हाँ, 2 स्टेट के बीच में होगी ना ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे इंटर जी। स्टेट हो जाएगा।
अब हमने जब इंट्रा की बात करी, इंट्रा स्टेट जीएसटी, अगर मैंने विद इन स्टेट बेचा है माल, तो आप पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। और इन केस अगर आपने इंटर स्टेट जीएसटी लगाया आपके ऊपर, अगर आप दूसरे स्टेट में माल को बेच रहे हैं, तो आप पे एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, जिसको जिसको मिला के एक सिंगल टैक्स बनता है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है टाइप्स में? नो मैम। ओके। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। जी मैडम, मैडम एक अगर डाउट है किसी को मेरे को। डाउट अगर किसी को डाउट है तो ये आई थिंक एग्जाम्पल मैंने जो बनाया है इससे क्लियर हो जाएगा। फिर भी इसके बाद भी किसी को डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी। मैडम एक जैसे कि मान के चलो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है हम्म। और मैंने 1.5 लाख का माल ये लिया किसी क्वेश्चंस पार्टी में। ये क्वेश्चंस हम क्या क्लास के एंड पे लें, क्योंकि स्लाइड थोड़ी लंबी है। हाँ, आप ओके नोट मैडम। डाउन कर लीजिए, क्लियर करेंगे हम आपका डाउट। तो ये एग्जाम्पल है, पहला है इंट्रा स्टेट, जिसमें आपको मैंने जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक हरियाणा का पर्सन है जो हरियाणा में ही माल बेच रहा है, मतलब हरियाणा से ही हरियाणा में। तो जीएसटी रेट अगर मान लो इन केस ऑफ 18% हम लगाते हैं, तो 10,000 का माल लिया, तो उस पे जो टैक्स बना वो 1,800 रुपये बना। तो इस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी जो कि 9%, एसजीएसटी जो कि 9%, दोनों ही 9% लग गया। तो टोटल जो यहाँ पे जो जीएसटी है मतलब 900, और एसजीएसटी है 900, तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स हो गया 11,800 हो गया। ये हो गया इंट्रा स्टेट में। अगर मैं इस केस में बात करूं इंटर स्टेट में, मतलब हरियाणा का पर्सन है लेकिन कहाँ बेच रहा है माल? राजस्थान में। तो यहाँ पर जो जीएसटी रेट है सेम रखा है मैंने 18%। तो यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी 18% जो लगा है, जो कि 1,800। टैक्स तो उतना ही लगा है 1,800, लेकिन यहाँ पे एक ही टैक्स लगा जो कि आईजीएसटी है, और वहां पे दो टैक्स लग रहे थे जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी। तो टोटल अमाउंट इस केस में भी 11,800 ही है। इस इस एग्जाम्पल से सबको क्लियर हो गया कि इंट्रा स्टेट क्या है और इंटर यस स्टेट क्या मैम, है? इंटर स्टेट क्या है, इंटर स्टेट क्या है? यस यस मैम, मैम। यस ओके, मैम, क्लियर हो गया। बेसिकली ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही स्टेट के अंदर लगता है और आईजीएसटी अलग अलग स्टेट के अंदर लगता है। राइट। अब इसलिए मैंने ना इसका एक बिल भी लगाया है आपको दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। ये आपका मान लीजिए ये बिल है पूरा आपका, जिसमें आपके आइटम लिखे हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आपका एचएसएन नंबर, आपकी क्वांटिटी, आपका रेट, और ये टोटल अमाउंट हो गया। अब ये टोटल अमाउंट हो गया, इस पे कुछ फ्रेट चार्जेस लगे और इस पे टैक्स लगा, जो कि यहाँ पे 2.5% सीजीएस एसजीएसटी और सीजीएसटी 2.5%, मतलब दोनों ही। इसका रेट क्या है? 5%। 5% हमने बात करी थी कि ये डेली यूज प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये इस पे टैक्स लग गया 2.5%, 2.5%, और टोटल ग्रैंड वैल्यू क्या होगी? 31,034। इससे समझ में आ गया आपको कि जीएसटी कैसे लगता है? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अभी हमने बात करी ना कि 18%, तो हम जीएसटी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा जीएसटी अमाउंट अगर हमें निकालना है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब जैसे मैं अपने केस, अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शुरू में फोन का, वही मैं रख लेती हूँ। जहाँ पे मैंने 10,000 का फोन लिया था, तो जीएसटी अमाउंट मैं कैसे निकालूंगी? यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस मतलब 10,000 रुपए, इनटू में 18% का जीएसटी लगाया था वो, और डिवाइड में 100, तो कितना हो गया? 1,800 रुपए। यहाँ पे जो मैं ओरिजिनल प्राइस की बात कर रही हूँ वो है मेरा टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट भी बोलते हैं उसको, टैक्सेबल अमाउंट, जिसपे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टोटल प्राइस क्या हो गया मेरा? ओरिजिनल प्राइस प्लस में जीएसटी, मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना था मेरा? 10,000, प्लस में 1,800 रुपए उस पे टैक्स लग गया, तो टोटल प्राइस कितना हो गया? 11 11,008। 11,800। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये मैंने यस, नीचे हमारा एग्जाम्पल दिया जो मेरा फोन का था, वो यहाँ पे भी सेम अमाउंट है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यस मैम।
अब इस केस में एक और मैं बात कर लेती हूँ। अब तो ये गया, अगर मैं मान लो एक आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे तो आपको स्टेट की बात नहीं करी कि कहाँ पे मैंने माल बेचा। मान लो मैंने दिल्ली में हूँ मैं, और मैंने हरियाणा में माल बेच दिया। मान लो फोन था, मैंने 10,000 का फोन था, हरियाणा में बेचा। तो अब यहाँ पर कौन बताएगा कि क्या कौन सा टैक्स लगेगा? IGST लगेगा। आईजीएसटी लगेगा मैम, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी वेरी लगेगा, गुड। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर के में बीच हो रहा है ना। हम्म। अब कुछ क्वेश्चंस भी हमने रखे हैं ताकि आप अच्छे से कैलकुलेशन सीख जाएं कि क्या कैसे निकालना है, और इसके आंसर आप को सॉल्व करना है। तो या तो कोई रैंडम भी बता सकते, मैं रैंडम पूछूं किसी से, या फिर खुद आप वॉलेंट्री बताना चाहोगे इसका आंसर? मैं एक एक क्वेश्चन पहले पढ़ूंगी, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन यस क्या है? मैम। व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ साइकिल इन केस अ साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹5,000 and the GST rate applicable to it is 12%? तो इसका आंसर कौन बताएगा? 520 मैम आंसर इसका। बच्चे जो है ना हाथ 5600 खड़ा मैम। करे, जो हाथ दिखाएगा उससे क्वेश्चन, उससे आंसर 5,000 पे मैडम 12% जीएसटी 56 लगेगी। एक मैं जिसको भी आंसर देना है वो अपना पहले हैंड रेस करे, फिर बताए। ओके यस मैम। मैम। हाँ, दिलीप, दिलीप आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? मैम 5600 हाँ ठीक है, आपने कैसे निकाला इसको? मैम। तो उसमें 5000 में 12% वो ऐड कर दिया मैंने, ऐड करके डिवाइड कर दिया। तो इस केस में आपका जीएसटी अमाउंट क्या है? GST अमाउंट 600 रुपये मैम, 600। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इन केस अ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर ₹25,000 and the GST rate applicable to it is 18%? इसका इसका आंसर कौन देगा? हैंड रेस किसका है? ये मैडम गुलशन कुमार। गुलशन कुमार आप बताइए इसमें यस एक मैम। तो टैक्स अमाउंट क्या है, और टोटल प्राइस क्या है लैपटॉप का? ओके मैम, मैम टैक्स अमाउंट हो जाएगा हमारा 4500, एंड जब हम 25,000 4500 ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 29,500। वेरी गुड। सबको क्लियर हो रहा है कैसे हम जीएसटी यस कैलकुलेट यस करते हैं? मैम। यस ठीक। मैम। मैम जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ टेबल इन केस अ टेबल इज सोल्ड फॉर ₹10,000 and the GST rate applicable it is 12%? अब इसका आंसर मुझे बताएंगे सोनी। मैम मैम मैं बताऊँ? नहीं, सोनी बताएंगी इनका आंसर कि इस केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या है और टोटल वैल्यू क्या है। आई थिंक सोनी नहीं बोल रही है, तो मैम कोई टैक्स और देना चाहेगा इसका आंसर? मैम टैक्सेबल वैल्यू यस 1200 मैम, रुपए मैं है। बताऊँ? हाँ, सोनी सोनी दे मैं रही है आंसर इसका। मैं टैक्सेबल तो वैल्यू 1200 रुपए है, ठीक है। और टोटल यहाँ वैल्यू पे नहीं, टैक्सेबल वैल्यू क्या है इस केस में? 1200। नहीं नहीं, ये तो टैक्स हो गया ना। 12%। मैम टैक्सेबल वैल्यू अभी हमने डिस्कस किया था, टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। तो इस केस में ओरिजिनल प्राइस क्या है? 11,200। वो तो टोटल वैल्यू हो गया ना। 10,000 मैंने बोला जिसने पूछा टैक्सेबल यार इस वही पे वैल्यू। आए बोले। 10,000। 10,000। राइट। सोनी से पूछ रहे थे हम क्वेश्चन, और तो सोनी इसमें टैक्स क्या है? कोई और बताना चाहेगा इसमें टैक्स क्या है? मैम इसमें टैक्स अब मैं 1200 यस रुपए है। मैम। ओके, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है,
What is the price of a motorcycle in case a motorcycle is sold for 50,000 and the GST rate applicable to it is 18%? अमित अमित आप बताइए। जी मैडम। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द, आपने पढ़ा है फोर्थ क्वेश्चन अभी? नो मैडम। मैम मैं बताऊँ? मैं बताऊँ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इन केस अ मोटरसाइकिल इज सोल्ड फॉर रुपीज 50,000 एंड द जीएसटी रेट एप्लीकेबल इट इज 18%। ओके, एक मिनट। तो इस केस में आपका जीएसटी अमाउंट क्या है? जीएसटी अमाउंट 9,000 रुपये मैडम। ठीक है, और टैक्सेबल वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू 50,000 रुपये की, 9,000 रुपये टैक्स, टोटल अमाउंट उसका 59,000 रुपये हुआ विद टैक्स। वेरी गुड। तो आपको पता चलेगा कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। जी 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 मैडम। ठीक है। यस मैम। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर जो देगा मैं उसको 100 रुपए इनाम दूंगी। व्हाट इज, इसमें मैं पहले क्वेश्चन बताऊं? पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टैक्सेबल प्राइस ऑफ अ फैन इन केस अ फैन इज सोल्ड फॉर रुपीज 11,800 एंड द जीएसटी रेट एप्लीकेबल इट टू 18%? इस केस में टैक्सेबल प्राइस क्या है? 21,000 टैक्सेबल प्राइस है मैम वो 21,000 21,000 सॉरी 2,124 होगा 2124। टैक्सेबल ये अमाउंट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैम पहले मेरे ध्यान से पढ़े मैंने क्या 21,000 पूछा है इस केस में। मैम पहले टैक्सेबल म्यूट कर लीजिए, मैम म्यूट टैक्सेबल अमाउंट म्यूट कर लीजिए। 1000 है। मैम एक्चुअल पहले प्राइस शुरू में 1980 10,000 अमाउंट मैम 10,000 21,124 रुपीज। मैम आपने टैक्सेबल वैल्यू कौन बोल बोली रहा था अभी? 11,800। 24। मैम एक्चुअल प्राइस था 10,000 और बाकी का टैक्स ये लगा था। कौन, ये किसने बोला ये? मैम वंदना। 1800 वंदना का वंदना वंदना। टैक्स लगेगा और 10,000 अब ओरिजिनल सारे प्राइस। सारे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वंदना एक्सप्लेन कर रही है इसको। ओके वंदना आप मैम। एक्सप्लेन करो आप। हाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया मैंने, जो हमारा टोटल हाँ। प्राइस था 11,800। इसका मतलब इसके अंदर जीएसटी है। इंक्लूडेड है। तो जो हमने सिंपल सा Very फॉर्मूला लगाया, जो हम यूजुअली सॉल्व करते वक्त लगा देते हैं, 100 अपॉन में 118%, क्योंकि वैल्यू 100% नहीं, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, 18% के ऊपर है। तो सिंपली इसको सॉल्व करके 10,000 वैल्यू आ गई। वेरी गुड। मतलब इस केस में जो हमारा जो फैन सोल्ड हुआ है टोटल कितने में हुआ है? 11,800 में। मतलब उसमें जीएसटी इटसेल्फ इंक्लूड है, 18% इंक्लूड है, तो हमें उसको पहले 100% निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया कि जो भी हमारा टैक्सेबल, जो भी हमारा टोटल वैल्यू है, मतलब 11,800, वो कितना परसेंट है? 1,000 मतलब 118%, मतलब डिवाइड हो जाएगा 118 से इनटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। मतलब इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए। तो वंदना आई थिंक ये जीत गई है। वंदना को मिलेगा कैश प्राइज 100 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। अब इसमें हमने आंसर्स भी लिखे हैं क्या, ताकि आप जब दोबारा सॉल्व करें, इसको पढ़ें, तो आपको आंसर्स भी पीपीटी में दे दिए हैं। पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी। अब इसके अलावा अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। मैम कितनी बार मैंने बिल में देखा है कि आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी, तीनों जीएसटी होते हैं। कैसे ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। या तो वो आपका इंटरस्टेट होगा या इंट्रास्टेट होगा। दोनों जैसे केस मैंने अलग अलग ऑनलाइन डिफरेंट मैंने ऑनलाइन बता फोन दिया मंगाया था आपको। मैंने, हाँ फ्लिपकार्ट से हाँ। मैंने ऑनलाइन फोन मंगाया था। उसमें भी बिल में मेंशन था आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तीनों जीएसटी मेंशन थे उसमें। जीएसटी लगा किस पे था? नहीं, इसमें आप देखना क्या उसमें कितने परसेंट क्या लगा हुआ है। आपको या तो होगा सीजीएसटी एसजीएसटी, या तो होगा आईजीएसटी। क्लियर है? दो ही ठीक है केस मैम, होंगे चेक ना, कर या लो तो मैम। आपने इंटरस्टेट किया होगा, हाँ, या तो इंटरस्टेट होगा। मैं बिल को चेक करके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा।
देखो दिलीप दिलीप मैं आपको आंसर देता हूँ, 1 मिनट मैम, मुझे जी आप अलाउ करो। क्या होता है ना, देखो दिलीप, क्या होता है कई बार जब हम परचेज करते हैं ना फोन, तो वो जी फोन पे सर। जीएसटी नहीं लगा रहा होता, वो कई बार ना उसके अंदर इंश्योरेंस होती है या फिर आपकी एक्सेसरीज होती है या आपका फ्रेट ठीक का है सर। अमाउंट इंक्लूड होता है, ठीक है। उसमें ना दो बिल ठीक है। आपके मर्ज होके आ जाते हैं। एक बिल जो वो होता है जो फोन जहाँ से डिलीवर हो रहा है, एग्जाम्पल हरियाणा से आ रहा है आपका मटेरियल, ठीक है, और ठीक आप है। दिल्ली में हो, तो जब हरियाणा से आप मटेरियल ओके। मंगाओगे तो आप पे आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ हाँ में ओके। क्लब करके एक फ्रेट का इनवॉइस होता है, तो दिल्ली का ही सब, जो दिल्ली का ही फॉरवर्डर होता है, वहां से पिकअप करके आपको डिलीवर करता है, तो वो दिल्ली का हुआ। तो जो अपनी सप्लाई का जो सर्विस चार्ज लगाएगा वो लगाएगा सीजीएसटी और एचजीएसटी। और जो फ्रेट जो अमाउंट जो फोन वाला है, वो फोन वाला अपना क्या चार्ज करेगा, हरियाणा का जीएसटी, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। तो उसमें आपको तीनों तीनों दिख जाते होंगे, ये यहाँ पर ये चीज होती है, इससे वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बट वो होता हमेशा एक ही सप्लाई हो सकती है किसी एक प्रोडक्ट की, या वो दो सीजीएसटी जीएसटी एजेंसी होगी या फिर मर्ज करके आईजीएसटी। दिखाते हो। हाँ हाँ, वो क्या होता है, दो साथ में इनवॉइस होते हैं, अभी देखना कभी भी एक सर्विस चार्ज का बिल हमेशा अमेजोन में अलग से भी लगा होता है, अभी देखना 100 रुपए प्लस जीएसटी करके ना एक नीचे बिल आता है जब भी फोन हाँ परचेज वो और करोगे कोई नीचे आता प्रोडक्ट। है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। तो वो हमेशा ना दो तीन सप्लाई मिक्स करके दे देते हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ओके। सब कुछ मर्ज करके एक ही बिल बना के देते हो। हाँ, वो नीचे कर देते हैं, सब इनवॉइस को मर्ज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो दोनों टैक्स दिखते हैं, बट होता अल्टीमेट एक ही टैक्स है एक प्रोडक्ट के ऊपर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू विक्की, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। आई थिंक दिलीप को अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और और कोई किसी को डाउट है या कोई क्वेश्चन है? ये शीतल तंबुलकर ने चैट में मैसेज डाली है, कैन यू रिपीट मैडम अगेन इंट्रा एंड इंटर? यस, मैं 1 मिनट में स्लाइड दिखा देती हूँ आपको। आ, ये आपका फर्स्ट, आपने बोला इंट्रा और इंटर। इंट्रा स्टेट्स, अगर आप कोई भी गुड और सप्लाई करते हो, गुड्स और सर्विसेज, तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि आपने हरियाणा में हुआ, मेरे एग्जांपल मैंने हरियाणा में लिया है, और मैंने ताऊ जी भी बनाए हैं, दोनों दोनों हरियाणा के ही हैं। तो एक ने हरियाणा में माल माल खरीद मतलब बेचा, दूसरे जो भी बंदा है वो भी हरियाणा का ही है, मतलब हरियाणा से हरियाणा में ही माल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जीएसटी रेट लगेगा जो कि होगा इंटर स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट लगेगा, जो कि है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट में जो हरियाणा का अगर कोई पर्सन है, तो वो राजस्थान में माल बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम कोई भी सेल करते हैं, तो उसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो इंट्रा और इंटर, आई थिंक अब क्लियर होगा। किसका डाउट था ये? शीतल तंबुलकर। शीतल, मैम शीतल, मेरा था। शीतल आपको क्लियर है या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसको? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है। आई थिंक एग्जाम्पल अगला से बहुत अच्छे क्वेश्चन से क्लियर है होगा। गुलशन कुमार का। वो कह रहा है मैडम वो फैन वाला क्वेश्चन समझा दो, समझ नहीं आया कैसे करेंगे। गुलशन कुमार, आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो बोल के, अपने को अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो। ये यस लास्ट मैम, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा। समझ में नहीं आता, व्हाट इज द देखो, टैक्सेबल प्राइस ऑफ अ लास्ट फैन में इन कह रहा है केस ऑफ। व्हाट इज द टैक्सेबल प्राइस। हाँ, मैं समझा रही हूँ। देखो, अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस देखें तो हमने पूछा था व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल, मतलब यहाँ पे हम किसका प्राइस पूछे थे, किसी प्रोडक्ट का टोटल प्राइस पूछे थे, प्राइस ऑफ अ संजू जी, मोटरसाइकिल आपकी या आवाज सही से प्राइस आ ऑफ अ नहीं रही है, टीवी, थोड़ा अगर प्राइस ऑफ अ माइक के लैपटॉप। पास। लेकिन यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टैक्सेबल प्राइस। अभी अभी आ रही है? नॉट्स अ बिट बेटर। अभी क्लियर है आवाज? हाँ यस बिल्कुल मैम। क्लियर है संजू जी, हाँ। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे व्हाट इज द टैक्सेबल प्राइस, अगर मैं आप पहले वाली यहाँ पे स्लाइड देखोगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, राइट गुलशन? आप यस मैम। समझ रहे हैं क्या बोर्ड में? हाँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, टैक्सेबल प्राइस क्या है, किसका, फैन का। अगर मैंने जो फैन बेचा है कितने का, 11,800, मैंने
फैन टोटल यहाँ पे क्या मैंने 11,800 में फैन बेच दिया, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल प्राइस क्या है, टैक्सेबल प्राइस इस पर टैक्स लगा, 11,800। समझ रहे हो? हाँ, तो 11,800 में मैंने फैन बेचा, ठीक है, तो इसमें क्या है, टैक्स भी इंक्लूड है, जो कि 1800, मतलब 18% है ना, यहाँ पे लिखा है, अगर जीएसटी रेट 18% है, तो मैंने फैन बेचा है 11,800 में, मतलब इसमें 18% इंक्लूड है, तो ये कितना परसेंट हो गया, 118%। समझ पा रहे हो आप? यस मैम। हाँ, तो मैंने इसमें पूछा टैक्सेबल प्राइस क्या है, मतलब जिस पे टैक्स लगा, तो इसका आप क्या निकालोगे, 100%, तो वो कितना होगा, 10,000 रुपए। अब क्लियर है आपको? हाँ मैम क्लियर है। क्लियर है, मधु का क्वेश्चन है, मैडम क्या पक्का क्लियर है? जीएसटी हमेशा एमआरपी पर लगता है? यस मैम। ठीक है, मधु का क्वेश्चन है, क्या जीएसटी हमेशा एमआरपी पर लगता है? नहीं, आप जैसे कोई भी माल आप गुड्स बेच रहे हो या खरीद रहे हो, जीएसटी तब उस पर, और जो भी उसका प्राइस होगा, टोटल प्राइस, उस पे जीएसटी लगेगा। एमआरपी अगर हम बात करें तो वो तो जीएसटी उस पे इंक्लूड होता है। अगर जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रजिस्टर लिया, उस पे अगर जो पीछे देखेंगे तो आपका होता है एमआरपी, जिसमें टैक्स भी इंक्लूडेड होता है, तो एमआरपी में टैक्स भी इंक्लूड है। मधु आपको समझ आ गया? यस सर। ओके, और किसी को डाउट तो नहीं है, हम क्लास वाइंड अप कर सकते हैं? ये मधु ने एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या हर बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? नहीं, देखो अभी हमने मैंने आपको, मैं दोबारा आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस केस में मैंडेटरी था और किस केस में नहीं था। जैसे हमने लिमिट की बात करी थी कि जीएसटी कब मैंडेटरी होगा, जब या तो आपकी जो लिमिट है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट अगर क्रॉस होती है, तब आप जीएसटी लोगे। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी जो, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, तो अगर 40 लाख से ऊपर आपकी आपने सेल कर दी, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो 20 लाख से अगर आपने इनकम, आपकी जो सेल है हो गई, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। और दो कंडीशन ये थी जिसमें आपको टर्नओवर नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना कि मेरी टर्नओवर एक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही। मैंडेटरी कब हो जाएगा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। जैसे हमारे केस में हमने हरियाणा वाला पर्सन राजस्थान में अपना सप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि मेरी जो टर्नओवर है अभी 40 से ऊपर नहीं हुई है, मतलब हो गई है, मतलब वो हम ये देखेंगे कि ठीक है, अगर आपने थोड़ा कुछ भी माल, यहाँ पे अमाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। और इन केस ऑफ ई कॉमर्स सेलर, अगर आप जैसे कोई फ्लिपकार्ट पे आपने बिजनेस शुरू किया, आप फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको आपको वो करना पड़ेगा, जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे आपकी लिमिटेशन नहीं देखेंगे कि आपकी जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, आपने कुछ भी माल बेच रहे हो, कितने भी अमाउंट का बेच रहे हो, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, यस सर, इन सबको देना पड़ेगा ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन, जरूरी यस कंपलसरी है। सर, इनको जीएसटी मैंडेटरी है। और ये 40 लाख या 20 लाख लिमिट ये पूरे एक साल की है? इज यस इट पर सर, ईयर? पर ईयर? एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर पूरे साल की। एक साल का ना? यस सर। ओके, आपको क्लियर हुई मधु जी? यस सर, आपको क्लियर हुआ है? आपने क्वेश्चन जो दूसरा पूछा था, किस किस को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाला है, आपको समझ आ चैट गया मधु बॉक्स, जी? क्या बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना जरूरी, ये तो हो गया, ठीक है। आई थिंक मैम आई हैड एन क्वेरी। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन है आपका तो कोई? पूछ लो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। मैम हाँ, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बताया कि जीएसटी या जीएसटी की जो रिटर्न्स होती हैं, तो
मुझे ये जानना है कि आने वाली फ्यूचर क्लासेस में ये रिटर्न कैसे पोर्टल पे फिल की जाती है, क्या हम वो भी सीखेंगे? हाँ, अभी तो नहीं है, अभी प्रोसेस ये वाला नहीं है कि आपको रिटर्न्स बताएं। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली आपको बताएंगे। अभी हमारा मेन फोकस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे मतलब पूरी बेसिक क्लास देने का। रिटर्न्स का बहुत आगे का प्रोसेस है वो, इस क्लास में तो नहीं कराएंगे अभी हम आपको आगे का एंट्रीज कैसे होती है जीएसटी का, कैसे आप एंट्री करते हो, कैसे एप्लीकेबल होगा, वो नेक्स्ट क्लास कल होगी। लेकिन रिटर्न्स का अभी नहीं है इसमें, बहुत ओके। एडवांस लेवल हो जाएगा। हम्म, अभिषेक आई थिंक ओवर करते हैं। ठीक है संजीव जी। आई होप सभी के क्वेश्चन अच्छे से हमने आंसर किए होंगे, और थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल सेशन। और बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने कैमरा सुन लीजिए, ताकि मेरी कॉल वापस प्लीज आपने पीछे ले सके। थैंक यू एवरीवन। और आप अपनी अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने फोन नंबर्स के लास्ट के फील्ड्स लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां से अटेंडेंस ले लेंगे। बाकी आगे इस सेशन के लिए मार्क्स के लिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज लीडिंग पर्सन मिस्टर प्रदीप कुमार मोहतरा सर की। ओवर टू यू सर। आज की क्लास बहुत ही सुचारू रूप से चली। 59 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अभी भी 53 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। तो एडवोकेट संजू सैनी जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे इंट्रोडक्टरी क्लास थी, एडवांस नहीं थी। उन्होंने बताया कि जीएसटी क्यों देना पड़ता है, से ये सरकार को देना पड़ता है, जिससे कि वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डिफेंस, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पुलिस एंड लीगल सिस्टम। फिर उन्होंने टाइप्स ऑफ जीएसटी बताया, टाइप्स ऑफ टैक्स बताया। टैक्स कोई भी जो है डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जीएसटी है। उन्होंने बताया जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और जीएसटी को भरने के लिए ये ऑनलाइन ही देना पड़ता है, उसके लिए गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके जीएसटी के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और इसका फायदा ये है कि सिंप्लीफाइड है। पहले कई सारे टैक्स देने पड़ते थे, अब एक टैक्स हो गया है ऑल ओवर इंडिया। इसमें लेस कॉम्प्लायंस देना पड़ता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। बेसिकली इसकी 4 स्लैब है। पहले 0, 5, 12, 18 और 28 थी, और अब सितंबर 25 से 4 स्लैब रह गई हैं। नया न्यू जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल है। हर जो भी रजिस्ट्रेशन करता है उसको एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है, जिसको जीएसआईटीएन बोलते हैं, जीएसटीआईएन बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि बेसिक रूल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के क्या है। आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होना चाहिए, या कुछ राज्यों के लिए 20 लाख से ऊपर। और सर्विसेज के लिए, केवल सर्विसेज है तो उसके लिए 20 लाख की लिमिट है, कुछ राज्यों के लिए 10 लाख की। लेकिन यदि आप इंटर स्टेट माल सप्लाई कर रहे हैं या ई कॉमर्स में डील कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपको ये थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। 4 तरह के जीएसटी रिटर्न होते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3B और 9। इसके बाद उन्होंने बताया कि टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या क्या होते हैं। एक इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट, और इंटर स्टेट होता है 2 राज्यों के बीच में। उन्होंने इन सब के एग्जाम्पल भी दिए, इनवॉइस भी कैसे बनता है। फिर उन्होंने जीएसटी कैलकुलेशन का फार्मूला बताया
बाद में क्वेश्चंस के आंसर दिए, क्वेश्चंस तुमने पूछे 5-6, सभी बच्चों ने आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लिया और सभी ने मतलब जिसने भी हाथ उठा के आंसर दिया उसने सही आंसर दिया और सबने बड़ी शांति से क्लास अटेंड करी। आशा है हमें संजू सैनी जी की तरह और इसी तरह से स्पीकर्स मिलते रहेंगे जो हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे। अब अगली क्लास कल जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के सेलिब्रेशन में होगी और परसों जो है वो होगा सेल एंड परचेज विद जीएसटी इन टैली बाय ओम जी गुप्ता। ओवर टू अभिषेक, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क। बाकी आगे और थैंक्स के लिए मैं राधा जी की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। ओवर टू यू राधा जी। Hello, good evening everyone. My dear friends, I'm Radha Arya on behalf of Section Workers Society. Feel honored to extend a word of thanks. I'm deeply thankful to Advocate Sanjeev Sani for taking a wonderful discussion. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the senior of Section Bharti and Section Workers Society who great student class. Finally, thank you, Pradeep Kumar Malhotra sir for having taken so much interest in the presentation. Wishing you all a good night and thank you very much. It's over to you, Abhishek ji. तो थैंक यू राधा फॉर वोट ऑफ थैंक्स। बाकी आपको कभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और जो हमारी क्लास लास्ट हुई थी उसका भी हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ये भी आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप जाके दे सकते हैं। बाकी हम जो कल है वो डॉक्टर बाबा साहेब की हम जयंती हम मनाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज सेशन में आए। होपफुली हम कैसे एक महान व्यक्ति को सेलिब्रेट करेंगे जिन्होंने भाई क्या हो गया, अटक क्यों गया तू? योगदान रहा है। तो आप जान लेते हैं। बाकी आप सभी आपकी आवाज चली गई अभिषेक जी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। गुड नाइट एवरीवन।